Whenever there is a bigger to smaller unit conversion, we will just grade लेने के बाद बेटा always tie one knot. Value the reading that you got. But what was the starting point? Circulatory and oscillatory motion can be periodic only when you have to take this object to one of the position for dropping any object. Beta throwing nahi. Reference point decides that whether the motion was there or not. Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor Yogita Dhami. So here we are for class 6 science to cover the 5th chapter, measurement of length and motion. So let's start this journey and reach to our destination. यहाँ पे destination Delhi दिया हुआ है, लेकिन हमारा destination क्या है? Conceptual clarity, and definitely we are going to reach there. ठीक है? Before we start, if you want notes, you can join my Telegram channel. I'll share this PDF there. And yes, if you like this video, don't forget to subscribe and share it among your friends so that more and more students can take benefit from it. ठीक है? Now let's get started and here we go. बेटा this word measurement, is it new for you? पहली बार सुन रहे हो क्या यहाँ क्लास 6 में? No, of course not. You must have heard before. How tall, how short, how long, how small. ये सब क्या था? This was all the part of measurement. वहाँ पर आपने intellectually सोच के देख के आइडिया लगा के बता दिया कि कोई चीज़ कितनी बड़ी कितनी छोटी है. But this was the part of measurement only. Understood? Now, what do you all measure in your daily life? Everything, your height, your cloth, your bag, your school bag, your bench, your desk, everything is measured. So measurement is involved in each and every part of our life. ठीक है? So that's why it is important to know more about it. Now, have you seen anyone measuring, especially the length? किसी को length measure करते हुए देखा है? देखा पक्का होगा, है ना? Let me take you to the one common place where we measure the length. This one. ये क्या है? This is the cloth shop. ऐसी शॉप पे आपको अनस्टिच्ड कपड़ा मिलता है. ठीक है? नाउ व्हेन यू विल गो टू दिस शॉप एंड इफ यू वांट सम अनस्टिच्ड क्लॉथ, द शॉपकीपर विल टेक द यूज ऑफ वन टूल. दिस इज द वन. क्या है ये? दिस इज मीटर स्केल. सॉलिड होता है, वुड या फिर मेटल का बना होता है, और इससे कपड़े को मेजर करके आपको शॉपकीपर आपको अनस्टिच्ड क्लॉथ दे देगा. ठीक है? सो दिस इज द टूल विच इज यूज्ड बाय दिस शॉपकीपर. नाउ that unstitched cloth that you bought, if you will take to this tailor, now this tailor will not use the same meter scale, this tool. Now the shopkeeper will require this kind of thing. What it is? This is inch tape, है ना? अब बेटा यहाँ पर भी आपने unstitched cloth लिया, यहाँ पर भी आप unstitched cloth लेके गए, बट देखो दोनों जगह पे मेजरमेंट किसी दो अलग अलग डिवाइस से हो रहा है. Why? Because here the shopkeeper wanted the exact measurement of the cloth. Now cloth is not the straight stretched thing, है ना? तो उसके लिए आपको कोई एक स्ट्रेट चीज़ चाहिए जिससे कि आप उसको एग्जैक्ट मेजर कर सको. बट यहाँ पर टेलर शॉप के पास अगर आप जा रहे हो, now this tailor want to take the measurement of your body, है ना? अब now your body is not straight, your waist is round, so the person wants some tool which can take the shape of your body, and here comes this inch tape. Understood? So measurement can be done in various ways by using different tools. ठीक है? Now इंडिया में बेटा बिना टूल के भी मेजरमेंट हो जाता है. Yes. So here comes the common terms for measurement. बेटा कुछ ऐसे कॉमन टर्म है जहाँ पे कोई टूल की जरूरत नहीं है. हम बॉडी पार्ट से ही बता देते हैं कि कितना आपको मेजरमेंट करना है. ठीक है? वेरी वेरी कॉमन वन. देखो, लेट्स से दिस इज द ट्राउजर दैट योर मॉम बॉट फॉर यू, और ये लंबा हो गया. अब वो क्या बोलेंगी? मम्मा का बड़ा कॉमन टर्म है, इसको जाके ना 2 अंगुल छोटा करा के ले आओ. क्या बोला? इसको जाके 2 अंगुल छोटा करा के ले आओ. Now what does it mean? It means join your finger, 2 अंगुल, है ना? तो जितना ये आपका मेजरमेंट है उतना छोटा करवाना है. So here the body parts come in the picture. आप बॉडी पार्ट्स का यूज करके बता रहे हो मेजरमेंट. ठीक है? 2 अंगुल छोटा करवा लो, 4 अंगुल छोटा करवा लो. Yes? So have a look here. The first common term is angula itself. For small measurement which can be covered with the joined finger. 4 अंगुल तक काम चल जाता है. 4 अंगुल तक का मेजरमेंट इससे हो जाता है ना? तो स्मॉल मेजरमेंट यहाँ पे अंगुल से हो सकता है. ठीक है? नाउ अगर अंगुल से काम नहीं चल रहा, अगर 4 अंगुल से बड़ा आपका मेजरमेंट है, तो उसके बाद फिर पूरा हाथ ले लो या पूरा हैंड स्पैन ले लो, है ना? सो नेक्स्ट इज द हैंड स्पैन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बालिश्ड. क्या बोलते हैं? बालिश्ड. नाउ व्हाट इट इज? It is the measurement that starts from the tip of your thumb to the tip of your little finger when the palm is stretched. ये लाइन लिखनी जरूरी है that when the palm is stretched, because ऐसे केस में नहीं हो सकता, इसको स्ट्रेच करना पड़ता है. ठीक है? देखो, measurement from the tip of the thumb to the tip of the little finger when palm is stretched, that is called बालिश्ड. क्लियर? चलो, अब मान लो बालिश्ड से भी काम नहीं चल रहा, अब आपको और थोड़ा बड़ा मेजरमेंट चाहिए, तो उसके बाद
स्टार्टिंग फ्रॉम एल्बो यू टेक योर हैंड, है ना. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड क्यूबिट. इंग्लिश में इसको क्यूबिट बोला था, साइंस के लैंग्वेज में क्यूबिट होता है. अदरवाइज इसको एक हाथ, अब अभी पेरेंट्स के साथ कभी जाओगे ना, बोला एक हाथ का टेबल दिखाना जरा, एक हाथ का टेबल, है ना. सो दिस इज द मेजरमेंट, एक हाथ. सो क्यूबिट, what is the length, what is the measurement, length of arm from elbow to the tip of the finger. elbow से start होता है और tip of the finger तक जाता है, एक हाथ, that is cubit. Understood? next comes the yard. अब और बड़ा चाहिए भाई, एक हाथ से भी और ज़्यादा चाहिए, तो बोलेंगे फिर क्या, yard. Yard is the measurement from chin off to the tip of the fingers of full stretched arm. Measurement from chin to the tip of the finger of your full stretched arm. So this measurement starting from chin to the tip of the finger, this is called yard. Understood? So these were the common terms where your hand was involved. लेकिन इसके अलावा legs भी तो हैं, तो legs का भी यूज होता है ना. Have a look here. Let's say you went to this field with your grandparents और आपको पता करना है कि कितना बड़ा आपका खेत है. आपने पूछा कितना बड़ा खेत है, तो वहाँ पे अचानक से आप कोई टूल तो होगा नहीं. Then what you will do? You will just walk normally. जितने स्टेप्स की वॉक में आपने वन एंड से दूसरे एंड में आप पहुंचे, अब बोलोगे उतने कदम का खेत है. इट इज कॉल्ड स्ट्राइड. स्टेप्स टेकन बाय पर्सन वाइल वॉकिंग, है ना. जहां पर भी बहुत लंबी मेजरमेंट आपको करनी होती है, वहां पे आप स्टेप्स से इसको करते हैं, ठीक है. बट अगर मेजरमेंट छोटी है, लेट्स से दिस इज द रूम, यू वेंट विद योर पेरेंट्स एंड लेट्स से यू वांट टू बाय दिस, है ना, होम. तो आप बोलो कितना बड़ा रूम है. अब इस टाइम पे स्ट्राइड का यूज करोगे तो क्या होगा, 4 स्ट्राइड में तो खत्म हो जाएगा. सो देन यू विल यूज योर फीट, ठीक है. अपने नॉर्मल फीट से आप चलोगे बिल्कुल क्लोज करके, जितने फीट में आपने कवर अप कर लिया वन लाइन, बोलोगे उतने फुट का ये है रूम. अंडरस्टूड? सो फुट, मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स फीट, सिंपल, दिस इज कॉल्ड फुट. अंडरस्टूड? सो दीज वर सम कॉमन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट. नाउ हियर इज सम मोर टू नो अबाउट द इनक्रेडिबल इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री. बेटा दिस इज सम मोर टू नो बॉक्स गिवन इन योर बुक. India has rich history of measurement system dating back to the ancient times. जो ये वर्ड हमने अंगुला पढ़ा ना, ये अभी का नहीं, ये बहुत पहले से यूज हो रहा है. अंगुला, धनुषा, योजना, these are some of the system that are used in Indian literature mentioned है, और इन्हीं का यूज करके पूरा टाउन डेवलप कर दिया था एंशियंट टाइम पे, ठीक है. तो कितना एडवांसमेंट होगा उस टाइम पे भी, isn't it? Now the words that these common terms that we are talking about, beta, are these reliable? Can we be 100% sure with the values that we'll get by using these common words? Of course no, because here body parts are involved and body parts can vary from person to person. तो अगर एक पर्सन ने सपोज लेट्स से हैंड स्पैन से 15 सेंटीमीटर का वैल्यू बताई, तो दूसरे के हैंड स्पैन से हो सकता है 14.5 आए. यस, सो दीज आर नॉट रिलायबल. सेकेंड थिंग इज दीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब हम सिर्फ इंडिया तक तो यहाँ पे लिमिटेड नहीं है ना. वी वर्क विद फॉरेन अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो लेट्स से फ्रांस से कोई यहाँ पे आया कोलैबोरेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और उसको बोलो आप 2 अंगुल, तो उसे क्या समझ में आएगा? यस, सो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड दे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो नाउ वी नीड सम अदर सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी कैन गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. सो हियर कम्स दैट स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है. अब क्वेश्चन पहले ये आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड? बेटा नीड इज यूजिंग लोकल यूनिट और नॉन सिमेट्रिकल यूनिट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. दोनों ही चीजें मैंने आपको समझा दी. कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज. क्लियर? To bring the symmetry in units that can be used all over the world, that's why standard unit was required. Understood? Now who make this standard units? कौन decide करता है ये? Which system of unit is followed here? The system of unit now used is known as international system of unit. Simply बोला जाए तो उसको बोलते हैं SI unit. बेटा SI का फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बताने के लिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम बेसिकली लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर डिनोटेड बाय स्मॉल m. अंडरस्टूड? बेटा स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है, ध्यान देना इसको. क्लियर? नाउ 1 मीटर कितना होता है? कुछ आइडिया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर? बेटा 1 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 yard स्टार्टिंग फ्रॉम चिन टू द टिप ऑफ द फिंगर व्हेन योर आर्म इज स्ट्रेच्ड. ऑलमोस्ट इतना होता है, ठीक है. नाउ दिस मच ऑफ लेंथ, इज इट सफिशिएंट टू मेजर एवरीथिंग? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है,
Would it be convenient to use a unit meter to measure the larger length such as railway track or the distance between the two cities? अगर रेलवे ट्रैक को मेजर करना है या फिर इंदौर से दिल्ली का आपको मेजरमेंट करना है तो क्या मीटर में बताओगे कितना मीटर है? नो, यू वांट देयर सम बिगर लार्जर यूनिट्स, अंडरस्टूड. अब वहाँ पे अगर आपको स्मॉलर यूनिट मेजर करना है, लेट्स से दिस इज द एटीएम कार्ड और आपको इसका विड्थ मेजरमेंट करना है तो मीटर में कैसे करेंगे, है ना? सो यू नीड सम अदर स्टैंडर्ड सिस्टम. मीटर इज एसआई यूनिट, मीटर इज द एसआई यूनिट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कुछ और भी चाहिए मीटर के अलावा, सो दैट वी कैन मेजर कन्वीनियंटली अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीज अदर यूनिट्स. मीटर इज द एसआई यूनिट, यू नो दैट, है ना? अब मीटर से पहले अगर हम कोई एक प्रीफिक्स लगा दे तो अलग अलग आपको स्टैंडर्ड यूनिट मिल सकती हैं. देखो, किलो लगा दो तो लार्जर यूनिट किलोमीटर, है ना? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यू नो अबाउट दीज, है ना? अब इनका आपस में रिलेशन क्या है पता होगा पक्का, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये, है ना? हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, पता है ना? 1000. यस, सो हैव अ लुक हियर. बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपके 100% एग्जाम में आएगा. ठीक है, आपको कोई वैल्यू दे देंगे, उसको बोलेंगे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है, सो यू शुड नो द कन्वर्जन, सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. बेटा, कन्वर्जन करते वक्त आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान देनी है, आप बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हो कि स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हो. ठीक है, समझते हैं इसको. देखो, पहले तो ये देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. पता है ये? पता है ना, पहले से पढ़ा हुआ है, पता है ये. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर वाला मैं बता देती हूँ. यहाँ पर देखो, ये लेट्स से दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 to 2, दिस इज 1 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर में छोटी छोटी जितनी लाइन है कितनी होती है? 10. सो दैट इज मिलीमीटर. अंडरस्टूड. नाउ यहाँ पर बेटा हम बिगर टू स्मॉलर की बात कर रहे हैं. सो किलोमीटर इज बिगर एंड मीटर इज स्मॉलर, है ना? हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ से बिगर से स्मॉलर, बिगर से स्मॉलर, हर जगह देखो मीटर से सेंटीमीटर छोटा है, सो बिगर टू स्मॉलर. सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा है, सो बिगर टू स्मॉलर. ठीक है, सो यहाँ पर हो क्या रहा है? एक्चुअल में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. 1 किलोमीटर मीन्स हमने क्या किया? 1 into 1000 मीटर कर दिया, सिंपल. अब यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर बोलेंगे, 1 की जगह 5 किलोमीटर आ गया तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा. सो जब whenever we convert bigger to smaller, we always multiply. What we do? We always multiply. यहाँ पे देखो, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमने क्या किया? 1 into 100 किया और आगे सेंटीमीटर लगा लिया. ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में, बिगर टू स्मॉलर में हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करा. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, लेट्स से 2.5 मीटर. अभी करो, अभी पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट एंड टेल मी द आंसर. 2.5 मीटर कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे? बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, कुछ नहीं करना, 2.5 लिखो और आपको ये कन्वर्जन या ये पता होना चाहिए, इनटू 100. दिस इज द आंसर. मल्टीप्लाई इट, कितना आएगा बताओ? दिस विल बी 2025 और एक के बाद पॉइंट 250 सेंटीमीटर. इजी, ये वाला तो इजी है ना. सो वेन एवर देर इज बिगर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई. यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखो, कन्वर्ट 7 किलोमीटर इनटू मिलीमीटर. कौन है बड़े इंटेलेक्चुअल जिनको बड़ी अच्छी मैथ्स आती है? बताओ इसका आंसर. 7 किलोमीटर इंटू मिलीमीटर कितना होगा आंसर? क्या करना है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर आपको बिगर टू स्मॉलर जाना है, बिगर टू स्मॉलर जाना है, बट देर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स. पहले मीटर है, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर है. नंबर कितना है? 7. तो क्या करेंगे? 7 से किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने कितने चाहिए? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000. ये मीटर हो गया. मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए कितना चाहिए? इनटू 100. यस. फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितना चाहिए? इनटू 10. बस. बिगर टू स्मॉलर जाते वक्त जितनी भी यूनिट बीच में कन्वर्ट होती आ रही है, उतने उसके नंबर से 1000, 100, 10 डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कन्वर्टिंग, जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर. बस क्या ध्यान देना है? बिगर टू स्मॉलर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है. अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं. नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर.
अभी हमने ये वाला देख लिया, बिगर टू स्मॉलर देख लिया, नाउ स्मॉलर टू बिगर। अब स्मॉलर टू बिगर मतलब क्या है, लेट्स से मीटर टू किलोमीटर, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, सेंटीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर बेटा हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर होता है डिवीजन। देखो इसको देखते हैं, 1 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया, इसको बोला आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर देखते ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर स्मॉलर से हम बिगर में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा से 1 लिखना है और डिवाइड कर देना है किससे, उनके कन्वर्जन रिलेशन से, दैट इज 1000। दैट्स इट। अब देखो क्वेश्चन करो, 3 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, 3 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, सिंपल 3/1000, करो डिवाइड इसको, है ना। और देखो लेट्स से अभी इनके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेट्स से क्वेश्चन में आया आपका 550 मिलीमीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, स्मॉलर टू बिगर यूनिट, तो दोबारा से 550 लिखो है, लिखना तो है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन किससे होगा, किससे होगा डिवीजन आपका, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर है ना, तो 100 10 ये 10 है यहाँ पर, दिस इज 10, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर के उसमें 10, अंडरस्टूड। सो 10 से डिवाइड कर लो, 55 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर बेटा, ये शॉर्टकट तरीका है, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना मैं सिखाऊंगी आपको, बट दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग द आंसर। Am I clear? Understood? चलो आगे चलते हैं। In some scales you might have noticed some other scale marking. The scale marking is in inches. ये नॉर्मल स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वहाँ पे आपने पक्का देखा होगा, वन साइड देयर इज मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर स्केल एंड द अदर साइड इज हियर इंच स्केल, है ना, इंच स्केल। अब 1 इंच में कितनी वैल्यू होती है, 1 इंच की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 इंच की वैल्यू होती है 2.54। बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2.4 लिख के आ जाते हैं, रॉन्ग, 2.54 मतलब ऑलमोस्ट 2.6 के नियर, ठीक है, 2.54। सो 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच। Clear? So this is again one more way of measuring, one more unit of measuring. Clear? आगे चलते हैं। Now what is the correct way of measuring? आपको अब वैल्यू पता पड़ गई, आपको यूनिट्स पता पड़ गई, अब मेजर करना भी तो आना चाहिए ना। बेटा क्लास में पहले एक्टिविटी बहुत बार हो चुकी है, आपके टीचर ने भी करवाया होगा क्लास में। लेट्स से सबने बोला कि अपनी साइंस बुक निकालो ना, साइंस बुक का आपको लेंथ मेजर करनी है। अब लेंथ जब मेजर करेंगे ना तो ज़्यादातर बच्चों का वेरिएशन आएगा। लेट्स से 30.1, किसी का 30.1 आ रहा है, किसी का 29.9 आ रहा है, किसी का 29.8 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है। यस, सेम बुक, सबकी साइंस बुक तो सेम ही है, यस, लेकिन तब भी मेजरमेंट में वेरिएशन आता है। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट मेजरिंग द थिंग्स करेक्टली, सो यू शुड नो दैट हाउ टू डू द करेक्ट मेजरमेंट। हैव अ लुक हियर, these are the 3 things that you will have to notice while measuring. The first thing is correct scale. क्या आप मेजर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका स्केल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर क्या मतलब इसका बेटा, लेट्स से आपको बोला कि आप अपना ब्लैक बोर्ड मेजर करके आओ। अब ब्लैक बोर्ड मेजर करने के लिए आप वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसको लेके जाओगे, तो क्या एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप उसको एक बार मेजर करोगे, फिर एक मार्किंग लगाओगे, फिर दोबारा मेजर करोगे, तो चांसेस हैं ह्यूमन एरर के, इजंट इट। सो डिपेंडिंग कि आप क्या मेजर कर रहे हो, आपके पास स्केल प्रॉपर होना चाहिए, वहां पर फिर आपको प्रॉपर मीटर स्केल या इंच टेप या फिर मेजरिंग टेप चाहिए। यू कांट मेजर विद दैट 15 सेंटीमीटर स्केल, यस, बट इफ यू वांट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ कॉइन, लेट्स से 5 रुपीज कॉइन, अब उसके लिए मीटर स्केल लेके तो नहीं बैठोगे, यस। सो यू हैव टू यूज अ प्रॉपर करेक्ट स्केल। हैव अ लुक, choose the appropriate scale according to what needs to be measured. Second thing, correct placement of the scale. इसका क्या मतलब है? correct placement का मतलब place the scale in contact with the object along its length. बेटा लेट्स से आपको ये मेजर करना है, ये येलो शीट, ठीक है। अब बताओ कौन सा करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। वाई? यहाँ पर स्केल बिल्कुल लेंथ में उसके लाइन से मिला के रखा हुआ है, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। यहाँ पे तो टेढ़ा रखा हुआ है, yes, so correct placement of the scale, understood. Next, correct position of the eye for reading. अब इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो। अब लेट्स से ये स्केल, ये पेंसिल की आपको लेंथ मेजर करनी है टिप तक, है ना। अब वन ऑफ द स्टूडेंट ए इज वॉचिंग फ्रॉम द स्लांटिंग दिस साइड, तो इसकी लाइन आई साइड कहाँ जा रही है? इसको आगे एक्सटेंड करो, ये जा रही है, ठीक है।
B इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ये इसका मेजरमेंट आ रहा है। अब C वाले का मेजरमेंट कहाँ आएगा बताओ, ये। अब देखो एक ही चीज मेजर हो रही है लेकिन सी द रिजल्ट वेरिएशन, है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ मेजरिंग, हाउ यू हैव टू प्लेस योर आई, द पोजिशन ऑफ योर आई शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ रीडिंग ऑन द स्केल। जहां पे आपकी रीडिंग है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी होनी चाहिए, जैसे स्लांटिंग में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 1-2 यूनिट का तो ऐसी वेरिएशन हो जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो नाउ एक और कंडीशन हो सकती है ना बेटा, लेट्स से ये स्केल तो नॉर्मल है, अगर ब्रोकन स्केल होगा तो, है ना। सो हाउ टू डू द मेजरमेंट विद द ब्रोकन स्केल, क्वेश्चन बनेगा यहां से पक्का। देखो लेट्स से ये आपका स्केल है जो कि यहाँ का हिस्सा टूट गया है, ठीक है। अब मम्मी ने बोला भाई इसी से काम करोगे, नया नहीं मिलेगा। अब कैसे काम करोगे, लेट्स से यू हैव टू मेजर अगेन दैट येलो शीट, ठीक है। तो येलो शीट में हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो, वी हैव टू प्लेस द ब्रोकन स्केल फ्रॉम एनी वन फिक्स्ड रीडिंग। 3 से शुरू करो, 4 से शुरू करो, 5 शुरू करो, मर्जी आपकी, लेकिन एक फिक्स्ड रीडिंग से आप स्टार्ट करो उसको, ठीक है। लेट्स से हमने 3 से मेजर स्टार्ट किया, अब 3 से कहाँ तक आया मेजरमेंट हमारा, 14 तक, ठीक है। तो अब क्या इस येलो पेपर शीट की मेजरमेंट क्या 14 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स नॉट। 14 सेंटीमीटर कैसे होगा, 0 से शुरू है ना। तो 14 वैल्यू आपको मिली, 14 is the value, the reading that you got, but what was the starting point, 3। तो जो उस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको माइनस कर दो, 14 में से 3 माइनस कर दो, 11, दिस इज 11 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है। वट एवर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 माइनस करोगे, 5 से स्टार्ट करोगे तो 5 माइनस करोगे, अगर 1.5 से स्टार्ट करोगे तो 1.5 भी माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे ऑफ मेजरिंग विद द ब्रोकन स्केल। हैव अ लुक, if the ends of the scale are broken or the zero marking is not clear, it can still be used for measurement. With such scale, use any other full mark on the scale, any such scale where the prominent number is visible. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. Reading of this mark from the reading of the other end, and you will get the result with this broken scale also. Am I clear? Chalo, some more to know for you. हाउ टू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स डू द मेजरमेंट। बेटा उनके लिए एक स्पेशल टाइप का स्केल होता है जहां पर मार्किंग में रेज्ड होते हैं कुछ डॉट्स, सो दे कैन फील इट, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो जस्ट जहाँ पे नंबर है 6, 7, 8, 9 वहाँ पे 2 डॉट्स आर रेज्ड, सो दे कैन फील इट। जहाँ पर ये हाफ है वहाँ पर 1 डॉट है, सो दे कैन यू डू द मेजरमेंट बाय द फीलिंग, है ना, दे कैन बाय द टच। अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। नाउ राइटिंग द मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट करना तो सीख लिया, नाउ हाउ टू राइट इट। बेटा मेजरमेंट को लिखने के लिए हमेशा देयर आर 2 पार्ट्स दैट नीड टू बी फॉलोड। द फर्स्ट पार्ट, लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। यहाँ पे देखो 3, 4, 50 दीज आर द नंबर्स, उनके पीछे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, दीज आर द यूनिट्स। अंडरस्टूड। अगर एग्जाम में सिर्फ नंबर लिख के आ गए, पीछे यूनिट नहीं लिखी तो 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिलते उसके। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ योर आंसर शीट। जो मिड टर्म में फाइनल में एक आंसर शीट मिलती है आपको, उसका मेजरमेंट लिखना है आपको, ठीक है। अब मेजरमेंट अगर लिखना है लेट्स से 23 है, तो 23 क्या, अगर 23 से लिख के आ गए तो 0 मार्क्स, बिकॉज 23 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाट। सो नंबर शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय द यूनिट। क्लियर। नाउ हाउ टू राइट दिस यूनिट, इज देयर एनी पर्टिकुलर वे? यस, उसके लिए भी एक हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, डू यू नो मोर वाले बॉक्स में। Units of length such as kilometer, meter, centimeter, millimeter begin with the lower case letter except at the beginning of the sentence. अगर sentence start ही इनसे हो रहा है तो capital letter होगा, otherwise everywhere they are used, you have to use the small lower case. Clear? Their symbol kilometer, meter, centimeter, millimeter are also written in lower case. मतलब उनका नाम भी उनके सिंबल भी दोनों ही लोअर केस में आते हैं। उनके सिंबल के बाद कोई डॉट नहीं लगता, है ना, जैसे हम मिस्टर मिसेस के बाद डॉट लगा देते, ऐसा कोई डॉट नहीं लगता। अनटिल अनलेस दे आर द सेंटेंस इज एंडिंग विद देम, अगर सेंटेंस एंड होगा फिर तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज डॉट नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर नेवर फॉलोड बाय एस फॉर द प्लूरल। जैसे हम किलोमीटर्स, मीटर्स ऐसे नहीं बोलेंगे, कितना भी वैल्यू हो हमें किलोमीटर ही लिखना है, KM, नो, वहां पे कोई एस नहीं आएगा। अंडरस्टूड। चलो नाउ नोट दैट फुल स्टॉप ये मैंने बता दिया आपको, एंड except at the end of the sentence while writing the length always leave a space between the number and the unit.
नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस होना चाहिए। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो, नाउ गोइंग फॉर द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइंस। बेटा अभी तक जितने भी हमने मेजरमेंट करे वहां पर हम स्ट्रेट लाइंस का मेजरमेंट कर रहे थे, लेंथ ऑफ योर बुक, लेंथ ऑफ योर आंसर शीट, यस, बट वी मेजर समटाइम्स some curved lines also, then how to we'll go for it? Can we use the straight scale? No. देखो यहाँ पर let's say this is the circle, अब बोला इसका circumference मेजर करो, तो स्ट्रेट स्केल कैसे यूज हो सकता है ना। यहाँ पे कर्व्ड लाइंस है, बोला इनको ये जो लेंथ कर्व्ड है, कर्व्ड लाइन है, उनका आपको मेजरमेंट निकाल के दिखाना है। अगेन स्ट्रेट स्केल वी कैन नॉट यूज, so what we have to use here, we have to use some flexible measuring device or thread। सबसे बेस्ट तरीका है थ्रेड। देखो यहाँ पर in such cases of curved lines measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using the thread। ठीक है, कैसे होता है ये देखो, जो भी आपकी कर्व लाइन है उसके बिल्कुल लाइन टू लाइन अपना थ्रेड लेते हुए चलो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड एट लास्ट टेक इट टू द स्केल और उसको मेजर कर लो। ठीक है, अब ऐसे बोल के नहीं समझ में आएगा, करके देखते हैं। ये देखो, लेट्स से दिस इज द बॉटल हियर आई एम हैविंग, और इसको मुझे इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है ना। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, टेक थ्रेड। अब थ्रेड लेने के बाद बेटा ऑलवेज टाई वन नॉट। ये टाई वन नॉट क्यों, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी रखो, ये आपका नॉट स्टार्टिंग पॉइंट है। टेक अ फुल राउंड, फुल राउंड कहाँ तक, आपका नॉट तक मिल गया। तो ये आपका मेजरमेंट इतना है। ठीक है, इसको जाके स्केल पे रखो, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ योर बॉटल। ठीक है, सो नॉट इज हैविंग द सिग्निफिकेंस। अगर नॉट नहीं लगाओगे तो कई बार थोड़ा सा हाथ यहाँ स्लिप हो गया तो मेजरमेंट फिर एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, देखो द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटेंड। अच्छा, थ्रेड से आपने मेजर किया, देन द थ्रेड कैन बी स्ट्रेटेंड एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ नॉर्मल मीटर स्केल या नॉर्मल स्केल। Understood? So this way we can use you can measure the curved lines. Moving ahead, now going for the next part of this chapter, that is describing position. बेटा यहाँ से आगे हम positions, movement, motion, rest इन सब की बात करेंगे। ठीक है, चलो डिस्क्राइबिंग पोजिशन के लिए एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस आपके बुक में दिया हुआ है। दिस इज द वन। यहाँ पर ये आपका स्कूल है, कहाँ है भाई स्कूल, ये। सो दिस इज द स्कूल। यहाँ पे कोई क्लास है, वहाँ पे टीचर ने बोला है इन सारे बच्चों को कि टुमारो वी विल मीट एट हर्बल गार्डन, है ना। हम कहाँ मिलेंगे, हर्बल गार्डन में मिलेंगे। तो बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया। ओहो, यहाँ पे पद्मा बड़ी खुश कि ओ हर्बल गार्डन तो मेरे बहुत घर के पास है ना। और यहाँ पे दिस दीपाज हाउस, इन्होंने बोला ओ नो मेरे तो बहुत दूर पड़ेगा। अब देखो स्कूल तो इतना पास था ना, लेकिन हर्बल गार्डन बड़ा दूर है। यस, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। बेटा जैसे ही टीचर ने एक उनको बताया कि आपको हर्बल गार्डन मिलना है, तो सब ने हर्बल गार्डन के रेस्पेक्ट में अपनी अपनी डिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। यस, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द पोजीशन, with respect to this position everybody is finding their distance. Got it? So this is describing. अब यहाँ पे अब डिस्क्राइब करना है पोजीशन को। तो क्वेश्चन, गार्डन के रेस्पेक्ट में who is living farthest from the garden? Who is living? दीपा, है ना। Who is nearest to this herbal garden? Who will take the cover the shortest distance? Who will cover the shortest distance to come to the garden? Padma, of course. Yes, who is third from the herbal garden? Whose house is third from the herbal garden? Now you can find out. So this way you can describe the position. But for describing the position, you need a marking. यहाँ पे marking क्या है? Garden है. Clear? अगर बिना garden के randomly आपसे कोई पूछे, describe the position of Deepa's house. अब भाई Deepa's house किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो? स्कूल के रेस्पेक्ट में, बस स्टैंड के रेस्पेक्ट में, हर्बल गार्डन के रेस्पेक्ट में. So you need to give the marking point. Clear? आगे देखते हैं. When distance is stated with respect to the fixed object, then this point is called a reference point. इस पूरे इंस्टेंस में रेफरेंस पॉइंट क्या था? हर्बल गार्डन था. Am I clear? आगे देखते हैं. डिस्क्राइबिंग पोजीशन के लिए बेटा लेट्स ड्रॉ. दिस इज एन एक्टिविटी. इससे आपको ये पोजीशन वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स ड्रॉ. क्या ड्रॉ करना है? 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन बी. अब कोई लाइन बी है, वो 3 सेंटीमीटर की और हॉरिजॉन्टल है. तो आपकी कॉपी के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन लो. ये 3 सेंटीमीटर हमने लेट्स से ड्रॉ कर लिया और उसका नाम है लाइन बी. ठीक है, उसके बाद बोला 5 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन सी. अब 5 सेंटीमीटर बोला वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन तो कोई भी कहीं बना सकता है ना. मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से बना लूँ, कोई हो सकता है कोई किसी का मन करेगा वो इस पॉइंट से बनाएगा. तो सबकी कॉपी में वो अलग अलग बनेगा. तो हमने यहाँ लेट्स से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया. दिस इज 5 सेंटीमीटर
line C. Now line joining the end of line B and C. अब end, मेरा end ये था और ये है, सो ये end करते हुए एक लाइन बन गई और इसका नाम है नाम ही नहीं, चलो line joining the end C. तो हमारा ये डायग्राम बना एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसको बनाओगे मेरे साथ साथ तो आपका शायद कुछ और बनेगा. अंडरस्टूड. नाउ इसी डायग्राम को फिर से बना के देखते हैं. फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ए, अब यहाँ पिक्चर में क्या आ गया, रेफरेंस पॉइंट आ गया. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. नाउ फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ए 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम बी था. 5 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन जिसका नाम क्या था, सी था. दिस इज 5 सेंटीमीटर. उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ बी एंड सी, तो लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ बी एंड सी. नाउ यू गॉट अ प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल. यस, मिला ना. सो सी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग पॉइंट. यहाँ पे बिना पॉइंट के रैंडमली कोई भी कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे आपको रेफरेंस पॉइंट मिल गया, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो आपको प्रॉपर डायग्राम बना. अंडरस्टूड, समझ में आया रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू. चलो आगे चलते हैं. जस्ट हैव अ लुक हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. बेटा यहाँ पे एक और एक डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक का ही है. हियर देयर आर सम माइलस्टोन व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू रीच टू दिल्ली. डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ये दिल्ली है जो कि इंडिया गेट पे आके खत्म हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स से द पर्सन इज हियर एट 70 किलोमीटर. ये यहाँ पर इसकी पोजीशन है ए पे. ठीक है, आफ्टर सम टाइम द पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी. जो पर्सन थे पहले वो रेफरेंस पॉइंट से 70 किलोमीटर पे थे, अब वो रेफरेंस पॉइंट से 60 किलोमीटर पे आ गए आफ्टर सम टाइम. तो क्या हुआ, डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करा ना, डिस्टेंस ट्रैवल करा टाइम के साथ, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है, सो व्हेन द पर्सन चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड मोशन. लेकिन मान लो ये पर्सन ए पे रुके और यहाँ पर एक होटल मिल गया, वहीं ये खाना खाने बैठ गए. So after half an hour also they are still at this 70 किलोमीटर milestone. So ऐसे में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन पे है क्या, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में क्या मोशन पे है, नो, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अंडरस्टूड. सो रेफरेंस पॉइंट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई मोशन और रेस्ट. देखो यहाँ पर when the object is changing position with time with respect to the reference point, we consider the object is moving or in motion, or when the object is not changing position with time with respect to the reference point, we consider that object is at rest. बस बेटा ये नॉट लगा देना, बाकी सेम ही डेफिनेशन है. अंडरस्टूड. चलो नाउ लेट्स फाइंड आउट सम मोर मूविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग. ये बेटा यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड और ये ट्री दिया हुआ है, बाकी मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं. ठीक है, नाउ यू हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई दीज थिंग्स आर मूविंग एंड व्हाई दीज थिंग्स आर एट रेस्ट. है ना, सब जगह एक ही आंसर आना है. काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड because cow is changing position with respect to the time. है ना, यहाँ पर soldiers march past, soldiers march past करते हैं, so soldiers are moving from one point to the another point, they are changing their position with respect to time. है ना, सब जगह वही आंसर है. यहाँ पर क्या होगा, ट्री, माउंटेन, पार्क्ड कार में क्या लिखोगे, कार is at same position, it is not changing its position with respect to the time, it is still in the garage after some time also, so it is at rest. Understood. अब बोलोगे मैम ये सारे के सारे एग्जाम्पल जहाँ पर हैं, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का कहाँ पे नाम आया, यहाँ पे तो हमने पोजीशन से बता दिया ना. इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोल रहे हैं वो मोशन पे है. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोल रहे हैं वो रेस्ट पे है ना. सो व्हाट वेयर वी आर यूजिंग दिस रेफरेंस पॉइंट, बेटा लेट्स फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मूविंग थिंग्स. बेटा एक ही चीज किसी के लिए मूविंग हो सकती है और किसी के लिए रेस्ट भी हो सकती है. अब कैसे, ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर motion is relative to the reference point. Motion is relative to the reference point. The reference point is important in deciding whether an object is at rest or the motion. इसके लिए यहाँ पे एक वीडियो देखो, ये मेट्रो ट्रेन चल रही है. अब इन दोनों पर्सन को देखो, ये लेट्स से A और ये पर्सन है भाई B, है ना. अब बेटा मान लो इन्होंने एक स्टेशन पे बोर्ड किया ट्रेन में और यहाँ से ये 5 किलोमीटर गए, ऐसे खड़े खड़े गए. ठीक है, 5 किलोमीटर ट्रेन ने मूव किया ना, मैंने बता रही हूँ ट्रेन मूव करी, ट्रेन ने मूव किया 5 किलोमीटर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. बट इनके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी, ए के रेस्पेक्ट में बी मूव किया क्या, ए के रेस्पेक्ट में बी ने मूव किया क्या, नो.
बेटा ए और बी स्टार्टिंग में गए, ये इस पोल पे खड़े हो गए, वो दूसरे पोल पे खड़े हो गए, 5 किलोमीटर यहीं खड़े रहे, वो अपनी अपनी जगह पे। 5 किलोमीटर ट्रेन मूव करी लेकिन वो अपनी जगह पे खड़े थे। सो मीन्स व्हेन द रेफरेंस पॉइंट इज बी, अगर ए के लिए रेफरेंस पॉइंट बी है तो फिर भाई मोशन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर इस ए के लिए रेफरेंस पॉइंट इसका ऑफिस है जो कि फर्स्ट स्टेशन पे रह गया, है ना, मान लो यहाँ पे कहीं एक ऑफिस था और ये ऑफिस से चल के इस ट्रेन में बोर्ड करे और ट्रेन चली गई, तो अगर रेफरेंस पॉइंट ऑफिस को देखोगे तो फिर उन्होंने मोशन किया। यस, सो सेम पर्सन ए, बट बी के रेस्पेक्ट में नो मोशन, जीरो, लेकिन यहां पे बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, उसके ऑफिस के रेस्पेक्ट में यस देयर वाज मोशन। अंडरस्टूड? सो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है। एक और एग्जांपल देते हैं, ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, मस्ट हैव ट्रैवल्ड, है ना, कोई आपके फैमिली मेंबर सी ऑफ करने आते हैं और मान लो आप 2 लोग कोई जा रहे हो ट्रेन पे, सामने सामने की सीट है, बैठ गए। नाउ एज सुन एज ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, यू टू आर सिटिंग ऑन योर सीट, ठीक है, यू टू आर सिटिंग ऑन योर सीट। अब पीछे से कोई आपको वेव कर रहा है बाय, तो वो जो बाय कर रहा है उसके लिए तो आप चले गए, यू आर इन मोशन, बट द 2 people who are sitting in front of each other on the seat, वो कहीं नहीं गए हैं, तो उनके लिए तो स्टार्टिंग से वो रेस्ट पे बैठ गए, आराम करके बैठ के डेस्टिनेशन पहुंच गए, तो उनके तो मोशन जीरो हो गया ना एक दूसरे का। अंडरस्टूड? सो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड्स दैट वेदर द मोशन वाज देयर और नॉट। एम आई क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आएगा पक्का एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल। देखो, फॉर अ पैसेंजर इनसाइड द मूविंग ट्रेन द नेक्स्ट सीट पैसेंजर इज एट रेस्ट। Inside the moving train, the next seat passenger is at rest, है ना? So, if taking himself as a reference point, but if the passenger takes reference point as some stationary object outside the train, बाहर की कोई चीज़ पे अगर आप reference point लेते हैं, then everyone including the train is in motion. अगर इसके ऑफिस की कंपैरिजन में देखोगे तो फिर तो पूरी ट्रेन, ये सारे 100 of people who are sitting inside the train, everyone is motion. Understood? Got it? चलो आगे चलते हैं। Now there is one question for you. अगर इसका आंसर है तो बताना। देखो, suppose you are traveling on a ship which is moving at constant speed. शिप में बैठे हैं, कांस्टेंट स्पीड से शिप जा रहा है, मतलब सेम स्पीड से शिप चल रहा है, बिल्कुल काम सी में, कोई वेव नहीं है, कुछ नहीं है, और सी के बिल्कुल सी है, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई माउंटेन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। This is the condition. So suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed at a straight line on a calm sea. टर्न नहीं ले रहा शिप, टर्न लेगा थोड़ा पता पड़ता है, टर्न भी नहीं ले रहा, सेम स्पीड से जा रहा है और आसपास कुछ नहीं है, सी है, और आप कोई विंडो भी नहीं है, आप कुछ नहीं देख सकते बाहर। तो ऐसे केस में आपको पता पड़ेगा कि मोशन हो रहा है कि नहीं? नहीं पता पड़ेगा, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम मूव हो रहे हैं। We feel that we are completely sitting just like a normal room, normal chair में बैठते हैं ना, वैसी फीलिंग आती है, ठीक है। So why? Because motion is relative. You are taking yourself as a reference point in a normal calm sea on which the ship is moving. That's why. ठीक है। Now going for the types of motion. So till now we got to know that what is motion? When any body changes its position with respect to time from reference point, that is motion, है ना। अब बेटा वो change in position कैसे हुआ? That decides the type of motion, ठीक है। और इसमें सबसे सिंपल तरीका है भाई, सीधे से चले जाओ, सीधे सीधे चले जाओ बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। नाम बड़ा सिंपल है लेकिन इसके एग्जाम्पल फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन इन द बुक, मार्च पास्ट। मार्च पास्ट में क्या होता है? लेफ्ट राइट, बिल्कुल सीधे जाते हैं, है ना। सो स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? द पर्सन इज पुशिंग द बॉक्स। आप किसी भी चीज को पुश या पुल कर लो, ड्रॉर पुल किया होगा कभी, ड्रॉर पुल करते हैं, कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आता है, स्ट्रेट अंदर जाता है, यस। सो व्हेन एवर देयर इज पुशिंग और पुलिंग, देन अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे देखो, ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट, बेटा थ्रोइंग नहीं है, थ्रोइंग में फिर कर्वी लाइन में जाता है। ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट, जैसे छोड़ दो बिल्कुल जमीन टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अंडरस्टूड? इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है? यस, कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड। तो यहाँ सब में क्या हो रहा है? when the object is changing its position in a straight line, and this kind of motion is called linear motion. मैथ से पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी बोलते हैं। तो लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब इसी के नाम है, सिंपल है। चलो, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, फॉर दिस वन एक्टिविटी विच इज गिवन, टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड लाइक दिस, नाउ होल्ड द अदर एंड एंड देन रिल इट। किया होगा बहुत बार ये, है ना, मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, बोर्ड में लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। नाउ
व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, द ऑब्जेक्ट विच इज टाइड, वो कौन से मोशन में मूव कर रहा है, कौन से पाथ पे मूव कर रहा है, सर्किल पे, है ना, सर्कुलर पाथ पे वो पूरा मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल, जो पाथ है वही उसका मोशन है, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन, हियर मेरी गो राउंड, अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। व्हेन यू राइड योर साइकिल, सो योर साइकिल व्हील इज इन सर्कुलर मोशन, यस। इसके अलावा इफ यू नो एनी अदर एग्जाम्पल, डू कमेंट विद द टाइम स्टैम्प, टेल मी द आंसर। देखो, when an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. Again easy one. चलो next one here, again one more activity. Tie an eraser or a potato to one end of the thread, hang the eraser by holding the other end of the thread or fix it on a stand. Using the other hand, take the eraser slightly to one end and then release it. ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, है ना। ये वाला मैं कर सकती हूँ, देखो यहाँ पर, ये देखो, here instead of potato or this eraser, I have tied this bottle cap, ठीक है। कोई भी heavy object आपको चाहिए जो कि ऐसे hang हो सकता है। Now what you have to do, you have to take this object to one of the position towards your left or right, ठीक है। You have to keep it steady from the other hand. Now release it. What is happening? This is called to and fro, to and fro, to and fro. Got it? This is called oscillatory motion. Oscillation जहाँ पे होता है, to and fro motion को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये इरेजर के साथ क्या किया, पहले टू एंड फ्रो। ऐसा एग्जाम्पल डेली लाइफ में कहाँ देखते हो आप, यहाँ पर स्विंग में, है ना, बेस्ट एग्जाम्पल। देखो, when an object moves to and fro above from the same fixed position, it is called oscillatory motion. पोजिशन ऊपर से फिक्स होती है, बाकी नीचे से आप टू एंड फ्रो जा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, अंडरस्टूड। चलो मूविंग अहेड, अदर एग्जांपल, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक और सी सॉ में भी क्या होता है, टू एंड फ्रो तो नहीं हो रहा, सो अप एंड डाउन हो रहा है, बट येस वी कैन कंसिडर एज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर। चलो लेट्स इन्वेस्टिगेट वन मोर एक्टिविटी विच इज गिवन इन द बुक, जो कि आपने पहले से बहुत बार करी होगी। क्या करना है, टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप और स्टील स्केल लाइक दिस, hold its one end pressed to the table. You can keep any heavy object, books over it, so that one of the end is fixed. Now press the free end of the strip slightly and let it go. इस वाले एंड में जाके हल्के से मारना है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है, क्या होगा, हल्की सी वाइब्रेशन वहां पे दिखेगी आपको, है ना। वाइब्रेशन में क्या होता है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन में तो होता है। ये वाली एक्टिविटी भी करी होगी आपने, किसी भी पेंसिल बॉक्स में या किसी भी सब्सटेंस पे आप ऐसे रबर बैंड लगाते हो, फिर इसको ऐसे ऐसे मारते हो। गिटार की स्ट्रिंग में भी होता है, सारे के सारे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी स्ट्रिंग में भी होता है, ये होता है ना। तो दैट इज वाइब्रेशन। एक्चुअली दैट वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन इटसेल्फ, यस। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। देखो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अंडरस्टूड, समझ में आया ऑसिलेटरी मोशन, जहां पर भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। सो वाइब्रेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, नो सम मोर फॉर यू। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, its motion is said to be periodic. अब बेटा ऐसा मोशन, अभी किस डायरेक्शन में कौन से पाथ में ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मोशन जो अपने चीज को अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? द बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लॉक। क्लॉक 12 पे होती है ना, लेट्स से मिनट हैंड 12 पे है, 1 आवर के बाद फिर 12 पे आएगा, फिर 1 आवर के बाद 12 पे आएगा, फिर 1 आवर के बाद 12 पे आएगा। तो क्या हो रहा है, टाइम इज फिक्स्ड 1 आवर और उसका मोशन पूरा रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो व्हेन एनी मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। अगर कोई चीज सर्किल में मूव कर रही तो एक सर्किल के बाद वो कभी रुकती है क्या अचानक से? अभी मैंने एग्जाम्पल किसका दिया, वॉच का, है ना। सो मिनट हैंड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, गोइंग अगेन टू 12, देन अगेन गोइंग टू 12। सो व्हाट इज हैपनिंग, सर्कुलर मोशन भी है वहां पर, साथ में पीरियोडिक भी है। अंडरस्टूड। मूवमेंट ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल, सर्कुलर मोशन, बट अगर आप कंटिन्यूस सेम स्पीड से जा रहे हो तो सेम इंटरवल में वो अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। यस, सो पीरियोडिक मोशन ऑल्सो व्हेन द स्पीड इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा रहे हो फिर चला रहे हो, तब नहीं। व्हेन योर स्पीड इज फिक्स्ड, then again the circular motion along with the periodic motion। ठीक है। देखो इसके अलावा an object is in oscillatory motion also repeat its motion। अब आपने सपोज करो गिटार की स्ट्रिंग में एक बार मारा,
तो गिटार की स्ट्रिंग सिर्फ एक वाइब्रेशन के बाद रुकती है? नो, अगेन इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, टू एंड फ्रो मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी पीरियोडिक मोशन. ठीक है, देखो बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. बोथ ऑसिलेटरी एंड सर्कुलर मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर. विद एग्जाम्पल आपको समझाना पड़ेगा ये, और एग्जाम्पल मैंने बताया आपको. गिटार की स्ट्रिंग है ना, उसके अलावा और कौन सा पीरियोडिक मोशन? जो हमने ये पेंडुलम वाला देखा, टू एंड फ्रो मोशन, दैट ऑल्सो पीरियोडिक. देखो, in circulatory or oscillatory motion, the object is coming back to its initial position after a fixed interval of time. Then the motion will be periodic in nature as well. Beta, the circulatory and oscillatory motion can be periodic only when they are repeating themselves in a fixed interval of time. ये कंडीशन है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वाली, है ना, हमेशा नहीं होता है. चलो आगे चलते हैं. लेट अस आइडेंटिफाई, दिस इज फॉर यू. ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है. यहाँ पर अलग अलग बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, आपको उनका मोशन आइडेंटिफाई करना है. अगर अच्छे समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो. दिस गर्ल टू एंड फ्रो, कौन सा? ऑसिलेटरी. दिस गर्ल मूविंग इन ऑन दिस हॉरिजॉन्टल स्टेयर्स, स्ट्रेट, कौन सा होगा? कौन सा होगा? लीनियर. यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस पर्सन स्किपिंग रोप, रोप का मोशन कौन सा होगा? सर्कुलेटरी. सर्कुलेटरी. स्ट्रेट लाइन, दिस इज सीसॉ, ऑसिलेटरी. Yes, understood? Chalo. With this, we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend and understand each and every concept in a simplest way. But still, facing any doubt or difficulty, comment. I will revert back there. Soon we will meet for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye-bye.